another book, The Miracles of Your Mind, and where we are studying about how to become wealthy. So how to become wealthy? Wealthy is a mindset. कल हमने बड़ी अच्छी सी affirmation पढ़ी थी, ये ऊपर वाले पैराग्राफ में थी. I like money, I love money वाली. I like money, I love it, I use it wisely, constructively, and judiciously. Money is constantly circulating in my life. I release it with joy and it returns to me multiplied in a wonderful way. It is good and very good. Okay, so this is one paragraph that we can read over and over again, or we can record it in our voice and listen to it when we are not able to speak it out. Okay, but you can write it on a piece of paper or on your phone and kind of read it 3 times in a day for 5 minutes. Okay, and out of those 3 times, one is morning and one is evening. तो 5 मिनट भी अगर आप पढ़ोगे नहीं तो you can catch on to the word wealth, success. That is more than enough. Okay. So now we will continue reading about how to become wealthier and how the mind works to make us wealthier. And Shikha will be reading for us. Yes, Shikha, please start reading. Good morning, ma'am. Very good morning. Never criticize money by saying it is filthy, it is bad, it is tainted. You cannot attract what you criticize. When you begin to think things through, you will realize that real wealth depends on the circulation of wonderful ideas in your mind, which well up from the subconscious levels. A young detective desiring more money used the above mentioned formula. One morning, he awakened with an intense desire to write a short story based on one of his experiences. He sat down, ideas came freely, his story was accepted, then he wrote many others and was paid handsomely for these articles. Wealth came to him as ideas in his own mind. Your mind also can reveal to you a new invention, the material for a new book or play. Make use of your subconscious mind. One One sales second. manager. So here in this पिछले वाले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है that never criticize money. कई लोग बोलते हैं कि उसका पैसे बहुत आ गए ना तो उसे नहीं हो रहा, उसका दिमाग खराब हो गया. हम नॉर्मली चलते फिरते ऐसी बातें करते हैं, है ना, दैट पैसा बहुत ज्यादा नहीं, मुझे तो इतना ही बहुत है, मुझे और पैसा नहीं चाहिए. सो यू हैव जस्ट ब्लॉक द मनी फ्रॉम कमिंग इन टू योर लाइफ बाय सेइंग दिस अगेन एंड अगेन दैट मेरे पास जितना पैसा है ना मेरे लिए बहुत है, मुझे और नहीं चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं होता. अगर आपके सारे डिजायर्स पूरे हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी एडुकेशन आप फंड कर सकते हो, है ना. सो इसलिए ऐसी ऐसी बातें करना मनी को नेगेटिव कॉनोटेशन में बिल्कुल रिफ्रेन फ्रॉम दैट. बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू रिसीविंग मनी ऑल्सो. हम सबके मनी ब्लॉकेजेस ऐसे होते हैं कि हम बहुत आराम से पैसा रिसीव करने में एक हिच आता है हमको हमेशा, है ना. जैसे कोई भी पैसे हम बहुत आराम से किसी से ले नहीं पाते हैं, या अपनी सर्विसेज के लिए भी हमको अपना पैसा नहीं मांगा जाता है ना. जैसे आप किसी को सर्विस दे रहे हो उसके लिए भी आपको पैसे मांगने में हिच होती है कि मांगना पड़ रहा है या ऐसे करना पड़ रहा है. तो नहीं, आपने अगर किसी को सर्विसेज दी है यू शुड ऑलवेज टेक द मनी एंड टेक इट विद ओपन आर्म्स. Okay, money should be invited with a lot of grace and love into life and a lot of gratitude. Of course, जिसने आपको पैसा दिया है उसको आप बहुत सारी blessings दो कि उसकी जिंदगी में हमेशा prosperity रहे और खूब wealth बढ़े और खूब उसके जो भी है properties multiply हो, या और उनके पेरेंट्स बच्चे बहुत अच्छे से थ्राइव करें, जो भी आपको ब्लेसिंग देनी है. बट मनी ब्लॉकेजेस हटाना बहुत जरूरी होता है ना. ऐसे नहीं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता. आप दिल खोल के अच्छे से पैसा लो. अगर कोई आपको सर्विसेज के अगेंस्ट ऐसे देना चाह रहा है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द सर्विसेज दैट यू टाइम इज मनी दीज डेज, isn't it? I mean, it is not that like sometimes we just while away our time while sharing our skills and talents. कोई भी स्किल और टैलेंट अगर ऐड कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है, तो पैसा बहुत पावरफुल एनर्जी है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए. सो इसमें ये भी, तो इसलिए पैसे को कभी भी उस लेवल में रखना ये भी पैसे की इंसल्ट होती है
कि किसी का पैसा रोकना और किसी को स्किल के अगेंस्ट पैसा नहीं देना। ठीक है, ये भी बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, इसकी वजह से पैसा सर्कुलेट होना हमारी जिंदगी में बंद हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो इन्होंने बताई है, दैट मनी कैन ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ मोस्ट अमेजिंग आइडिया। सपोज आपकी जिंदगी का कोई पर्पस है जहां से आपको एक और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता था, तो वो आइडिया के फॉर्म में आएगा। जब ग्रैटिट्यूड में होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस, जैसे परमात्मा से आत्मा में आता है, आत्मा ही परमात्मा होती है, तो आप जब अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को ही आत्मा बोलते हैं ना, तो जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं तो देर इज सम गॉड पावर दैट कम्स इनसाइड अस इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज, hunches एंड इंस्पिरेशंस। So when that comes to us, if we will just get an idea that why don't I start doing, that is God talking to you directly. It only comes in the form of ideas, and then when you start doing it, and then जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वो डिटेक्टिव था, तो अब वो पैसे कमाता था डिटेक्टिव बन के, लेकिन उसको सडनली ये पता लगा दैट आई कैन राइट शॉर्ट स्टोरीज वेरी वेल एंड माई माइंड इज वेरी क्रिएटिव इन राइटिंग स्टोरीज। फिर उसने छोटी छोटी कहानियां लिखना शुरू किया, एंड देन ही स्टार्टेड मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट। एंड देन वो कहानियों को जब वो मैगजीन्स को और बुक्स को सेल करता था तो उसको बहुत हैंडसम मनी मिलता था उसके लिए, है ना। सो वेल्थ उसकी जिंदगी में कैसे आई? डायरेक्ट पैसा नहीं आया, बट इट केम थ्रू दैट वन आइडिया। सो आइडिएशन बहुत वो मोनेटाइज हो जाता है बहुत आराम से, अगर वंडरफुल आइडियाज होते हैं काम करने के इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से न्यू बुक या प्ले लिखने का आइडिया, सो दैट्स व्हाट इट सेज, मेक यूज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बिकॉज इट इज अ रिजर्वॉयर। जब हम पूरी जिंदगी अभी तक 4% अपना दिमाग यूज करके हम इतने बड़े हो गए हैं, हम सबके ठीक ठाक सबके पास पैसा है, अच्छी कंफर्टेबल लाइफ हम लीड कर रहे हैं, वो सब 4% यूज करके हमने किया अभी तक। 96% अभी हमारा जो माइंड है वो अभी अनटैप्ड है, उसमें से हमने खींचना ही नहीं शुरू किया अभी तक। ठीक है, सो लेट्स यूज मोर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय कनेक्टिंग टू आवरसेल्व्स, बाय बीइंग इन दैट एनर्जी ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड, एंड बाय गेटिंग इनटू दैट पॉकेट्स ऑफ साइलेंस मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द डे। एक एक मिनट के लिए बस 5 बार ब्रीथ करो, कभी कभी सिर्फ 1 मिनट के लिए। मेडिटेट बहुत हैवी वर्ड लगता है, मेडिटेट मतलब होता है स्टॉप द थॉट्स एंड जस्ट बी, लाइक जस्ट स्टॉप द थॉट्स, सिट स्ट्रेट एंड बस ब्रीथ करो। अपनी सांस को अंदर जाते हुए देखो पेट की तरफ, और सांसों को बाहर निकलते हुए देखो, बस इसी को बोलते हैं। ये कोई बहुत बड़ा वैसा वर्ड नहीं है। धीरे धीरे कर करके आपका माइंड का क्लटर वैसे भी क्लियर होने लग जाता है। जैसे घर में होता है ना, अच्छे से झाड़ू पोछा हो गया तो घर बहुत साफ सुथरा नजर आता है, सब कुछ ऑर्डर में रहती है जगह। वैसे ही ये जो पॉकेट्स ऑफ साइलेंस आप क्रिएट करते हो डेलिबरेटली ड्यूरिंग द डे, इसकी वजह से आपका सोल कनेक्टेड होता है सुपर सोल को, एंड यू विल सी दैट इस तरह के आइडियाज ऑफ मेकिंग मनी एंड दिस, बिकॉज अगर आप लगातार अपने आप को बोल रहे हो दैट माई वेल्थ इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन माई लाइफ एंड बाय डे एंड नाइट आई एम गेटिंग वेल्थियर, और माई इनकम इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, या जो भी आप बोलते हो, इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ एन आइडिया, or it can come in the form of a person who says that I can finance business, why don't you run it, or something like that, something to that effect, and you will see that the wealth starts flowing into your life when you really listen to your inner voice that comes as an inspiration. So हम आगे पढ़ते हैं। हाँ जी। One sales manager I knew used to get ideas from his promotional sales campaign. When he awakened in the morning, he became the president of the company. They never had a sales manager like him. Your subconscious mind is never short of ideas. There are within in an infinite number of ideas ready to flow into your subconscious mind and appear as cash in your pocketbook शिखा in दोबारा पढ़ो। कॉन्शियस को आपने सब कॉन्शियस पढ़ लिया, ये दोनों अलग अलग चीजें। दोबारा से योर सबकॉन्शियस से दोबारा शुरू करो और ध्यान से पढ़ो। your subconscious mind is never short of ideas. There are within it an infinite number of ideas ready to flow into your conscious mind and appear as cash in your pocketbook in countless ways. This process will continue to go on in your mind regardless of whether the market goes up or down, or whether the pound sterling or dollar drops in value. Your wealth is never truly dependent on bonds, stocks, or money in a bank. These are really all symbols, necessary and useful, of course. The point
I wish to emphasize is that if you convince your subconscious mind that wealth is yours and the plenty of money is always circulating in your life, you will always have it regardless of the form it takes. If you believe that wealth or money is dependent on your job or more hours of work, you have a limited concept. You are bound by your own beliefs. This is a world of cause and effect. If you worry and fret about money, this mood of lack will produce a greater lack of money. Your mental attitude is the cause. Less money is the effect. There is one emotion which is the cause of financial lack in the lives of many. Most people learn this fact the hard way. It is envy. For example, if you see a competitor depositing large sums of money in the bank and you have only a meager amount of deposit, does it make you envious? The way to overcome this emotion is to say to yourself, isn't it wonderful? I rejoice in that man's prosperity. I wish for him greater and greater wealth. Do you know what you are doing? You are actually impressing the subconscious mind with the idea of wealth. To entertain envious thoughts is devastating because it places you in a very negative position. Therefore, wealth flows from you instead of to you. If you are never annoyed or irritated by the prosperity or great wealth of another, claim immediately that you truly wish for him. हाँ, if you are ever annoyed, बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग है, आपने नेवर, दोबारा पढ़ो, if you are ever annoyed. If you are ever annoyed or irritated by the prosperity or great wealth of another, claim immediately that you truly wish for him greater prosperity in every possible way. This will neutralize the negative thoughts in your mind and cause a greater measure of wealth to flow to you by the law of your own subconscious mind. Yeah. So हम आज इतना ही करेंगे. Thank you, Shikha, for reading so beautifully. Don't miss out on some important words. Okay? That's Okay. very important. Maybe there are some important things in life also you're missing out on. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much for reading so nicely. ओके सो इसमें ये एक लिमिटिंग बिलीफ है जो सबका होता है, जो मैं देखती भी हूँ अपने आसपास, कि हम बहुत ज्यादा सब्जुगेट करते हैं दैट हमारा पैसा वहां से आ जाए, यहाँ से आ जाए, वो हमको दे दे, जॉब दे रही है, वो वाला क्लाइंट दे रहा है, ये ऐसे दे रहा है. दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजाइजिंग. स्ट्रैटेजीज डोंट वर्क. ओके, सबकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन फीड है दैट वर्क्स. So you don't have to. Suppose if you want 2 lakh rupees right away, or आपको लगता है that I would really, want 2 lakhs by 25th of December or anything like that. Okay, so you don't have to tell the universe that from where you want it, or you have to think, देखो इतना तो मेरा जॉब से आ जाएगा, ये मेरी सैलरी है, इतना मुझे उसका आ जाएगा, मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाला था, इतना वहां से आ जाएगा. नहीं, यूनिवर्स को आप बस ये बताओ दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी 2 लाख रुपीज, एंड अज्यूम कि वो आपके पास आ चुका है, एंड थैंक फॉर इट एवरी डे, दैट थैंक यू दैट आई रिसीव माई 2 लाख रुपीज विद सो मच ईज. ओके, सो डोंट स्ट्रैटेजाइज कि कहाँ से वो पैसे आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं होती है. This is not, this is like telling the creator of this world that इतने पैसे जॉब से, इतना इस क्लाइंट से, इतना उस क्लाइंट से. बस हाई एनर्जी में रहो, पैसे तो वैसे ही आ जाएगा, पैसे के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, बिलीव मी. बस एनर्जी अच्छी रखनी पड़ती है. सो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड कीप योर सेल्फ इन दैट एनर्जी, एंड वेल्थ विल स्टार्ट फ्लोइंग इन टू द लाइफ वेरी इजिली. एंड डोंट स्ट्रैटेजाइज टू मच कि ये इतना यहाँ से, उस क्लाइंट से 2 क्लाइंट आ जाएंगे तो मेरा ऐसा हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा. You just have to go ahead and you have to ask for that amount of money that you would think is challenging for you. Okay, whatever it is believable to you.
challenging for you means it is believable to you that yes, I know that I can make so much. पहली ये चीज है. दूसरा, of course, जो इसमें लिखा हुआ है that never never be envious. सपोज आप दो जने ऑफिस में काम कर रहे हो, है ना, और एक जने का अप्रेजल हुआ है 15% एंड एक जने का सपोज आपका हुआ है 3%. तो अपने आप आएगा ना उस पर्सन से जो आपको लगता है कि वो काम भी नहीं करता है और उसको 15% अप्रेजल हुआ, उसका सैलरी 15% बढ़ गई और आपकी सैलरी 3% बढ़ी, जबकि आपने बहुत सिंसियरली काम किया है. देखो, कुछ भी रीजन के बिना नहीं होता. आपको पता नहीं है कि वो इंसान जो आपको पसंद नहीं है, आपका कुलीग जिसको 15% मिला है, यू नेवर नो कि वो अपनी माँ बाप की कितनी सेवा करता है. यू नेवर नो कि वो अपने आप को हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में लाने के लिए उसको क्या क्या अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ी है. यू नेवर नो कि किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए उसने कभी पैसे दिए हों. यू नेवर नो कि उनका कोई रिश्तेदार कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं हो, हॉस्पिटलाइज्ड, और उस पर्सन ने बिना सोचे समझे 25,000 रुपए निकाल के उसको दे दिए. यू नो, तो ये हमको कहाँ पता होता है. ये उसके कर्म है जिसके कारण उसको 15% अप्रेजल मिला है, बाय द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट विच इज ऑपरेटिंग 24/7 इन आवर लाइफ, 365 days a year. Okay, there is never happening anything without any reason. Everything is the effect of a cause that somebody has made. तो अगर किसी को 15% मिल रहा है, ये उसके कर्म है. ये उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि भगवान उसको रिवॉर्ड करना चाहते हैं. और अगर आपको 3% मिला है, चुपचाप 3% को बहुत सारा थैंक यू बोल के रिसीव करो. हाँ, अगर आपको एचआर से बात करनी है कि आपको 3% क्यों मिला है, आप गो ahead and you can have a nice word with it in a very nice manner. But right, I mean, like, just to give you an example that हम सब 555 प्रैक्टिस करते हैं जब हमारी लाइफ में कोई स्ट्रगल होता है. मैं 555 तब करती हूँ जब मुझे 30 तारीख को या 29 तारीख को सैलरी मिलती है. जब मुझे मिल जाती है उसके बाद मैं 555 करती हूँ. तो फर्क है ना. जो जो लोग जिनका पैसे की का स्ट्रगल है जिनकी जिंदगी में, एंड व्हाट आई डू, डिफरेंस है ना. तो पैसे कमाने के लिए मैं 555 नहीं करती हूँ. जब मुझे मिल जाता है, जब मेरी हर 30 को जब सैलरी आ जाती है, अगर वीकेंड होता है 30 को तो 29 को आ जाती है, तो मैं 29 को 555 प्रैक्टिस करती हूँ. 555 इज अगले 5 दिन मैं ये लिखती हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम डे. आई डोंट इवन वेस्ट द डे, बिकॉज सैलरीज हमारी कंपनी में हमेशा शाम के टाइम क्रेडिट होती है. आई थिंक वो उस ऑर्डर में क्रेडिट होती होगी सीनियरिटी लेवल पे, पता नहीं. बट मेरी सैलरी जनरली मुझे 6:30 बजे के आसपास क्रेडिट होती है, एनी टाइम बिटवीन 5 to 6:30. तो मेरा घर आने का टाइम हो रहा होता है उस टाइम. तो उसके बाद जब मैं घर आती हूँ, सबसे पहले मैं खाना खाती हूँ, बिकॉज आई ईट बिफोर 7 एंड देन आई सिट एंड डू माई 55 टाइम्स. अगर मुझे लगता है कि आगे के 3-4 दिन मैं बिजी रहूंगी और ये मेरा ट्रैवल है, तो फिर मैं सारे वो 555 मतलब 55 into 5 एक ही दिन कर लेती हूँ. मतलब 55 into 5 एक ही दिन कर लेती हूँ. मुझे पता होता है कि मैं आगे मतलब मेरा ट्रैवल है या मैं बहुत व्यस्त रहने वाली हूँ. तो मेरी 555 तो थैंक यू बोलने के लिए हो रही है ना, जेन्युइनली. मतलब पहले भी अगर हम करते तो हम यही बोलते हैं ना, थैंक यू दैट आई रिसीव दिस मंथ ऑफ सैलरी. So I always do it after I have received it. That thank you, that normally ऐसा होता है जब burning desire हमारा कोई होता है उस टाइम हम 555 प्रैक्टिस करते हैं. है ना. दैट सपोज अगर कोई भी चीज, दैट थैंक यू दैट आई एम हीलिंग लाइक अ मिरेकल. जैसे सपोज अगर अगर किसी की भी हेल्थ में कोई इशू आ रहा है तो वो 555 करेगा ना अपनी हेल्थ के लिए, दैट थैंक यू दैट आई एम हीलिंग लाइक अ मिरेकल. और ये 55 टाइम्स वो 5 दिन लिखेगा, क्योंकि उसको चाहिए कि उसकी हेल्थ में जो भी इशू आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाए. ठीक है. तो मैं तब करती हूँ जब मेरा रिजॉल्व हो जाता है ऑलरेडी. जब मैं ठीक हो जाती हूँ तब मैं लिखती हूँ थैंक यू फॉर माई रोबस्ट हेल्थ. बाद में तो वो पैसे आ जाते हैं. जैसे अगर मैंने सपोज लाइक आई एम गोइंग ओवरसीज दिस मंथ, तो उसके लिए मैंने अपना मैजिक चेक अपना भरा था उस ट्रिप के लिए. तो वो पैसा, उसका 80% पैसा मेरे पास आ गया. अभी भी 20% आजकल में हो जाएगा, आ जाएगा. तो जब आ जाएगा, जब पूरी तरह से आ जाता है तब मैं 555 प्रैक्टिस करती हूँ. ठीक है, पहले अगर मैंने किया था तो वो तो मैजिक चेक रोज मैं लेके खूब सारा लव देती थी, और जितनी बार वो मिलता था आई लव यू, थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई ऑलवेज यूज, ये सब चलता रहता था, रैंटिंग चैंटिंग मेरे दिमाग में. लेकिन जब आ जाएगा पूरा उसके बाद आई विल डू थैंक यू दैट आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड माई सो एंड सो लैक्स विद ईज. सो इस तरह बीइंग ग्रेटफुल का ये नेक्स्ट लेवल होता है.
कि आप मांगने के लिए 555 नहीं कर रहे हो। जब आपके पास आ गई, आपका सपोज 3% भी अप्रेजल हुआ था, तो आप उसको एक्नॉलेज करने के लिए लिख रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स दैट आई रिसीव्ड अ 3% अप्रेजल दिस ईयर। सो जबकि लोग उसके बारे में गलत बात करेंगे, इजंट इट? क्योंकि आपको सबको पता है उसको 8% मिला है, उसको 10% मिला है, उसको 15% मिला है, और आपको सिर्फ 3%। ये आपके कर्माज है, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं तो कुछ है कि आपने किसी का पैसा रोका था, या आपने किसी को संकोच करके पैसा दिया, किसी सर्विसेज के अगेंस्ट आपने उसको पैसा नहीं दिया। कुछ ना कुछ तो है ना? विदाउट रीजन नहीं होता कि मैंने तो आई एम फुल प्रूफ एंड स्टिल आई गॉट 3%। देयर इज ऑलवेज अ गुड रीजन। ठीक है, इस जन्म में आप बहुत ज्यादा दिलदार हो और आप बहुत ज्यादा वो करते, हो सकता है ये पिछले जन्म का इफेक्ट होगा, यू नेवर नो। सो बट देन अगर पैसा रुक रुक के आ रहा है या कुछ है, बिकॉज दैट मीन्स दैट व्हेन द मनी हैज कम यू हैव नेवर अप्रिशिएटेड इट, है ना? ऑलवेज वांटिंग में है दैट टू, मतलब मैनिफेस्ट करने के लिए तो ऑब्वियसली मैं आपको बोलती हूँ अभी उल्टे खड़े हो जाओ तो सब हो भी जाएंगे, कि मतलब ये करने से आपके पास ना 10 लाख रुपए आ जाएंगे, आप ये करो। सो यू विल वांट टू डू दैट, राइट? अगर मैं आपको बोलती हूँ दिल से दैट आपको अच्छा 10 लाख रुपए चाहिए, तो आप ये वाली प्रैक्टिस करो, आप इतना हो पोनो पोनो करो, तो आप ब्लाइंडली कर लोगे, यस आई हैव टू डू इट बिकॉज आई वुड लव टू मैनिफेस्ट 10 लाख रुपीज इन माई लाइफ, राइट? लेकिन जब आपको कहीं से 1,000 रुपए मिले हैं, क्या तब आपने किया था उसी उसी इंटेंसिटी के साथ थैंक यू? ये फर्क होता है उन लोगों में जिनके पास पैसा बहुत आराम से आता है और जिनके पास स्ट्रगल के साथ आता है। क्लाइंट्स के बारे में बुरा बोलना, जिन लोगों ने पैसा दिया है, जिससे आपका घर सस्टेन हो रहा है, उनके बारे में पीछे से बात करना, पैसा की हमेशा देखना कि अरे ये कम है, ये कम है, दैट्स कॉल्ड लैक मेंटालिटी। इट्स अ बिलीफ प्रॉब्लम। तो अगर लैक मेंटालिटी रहेगी कि मैंने तो सोचा था कि 50,000 आएगा लेकिन मेरे पास 20,000 ही आया है, तो अगेन अ प्रॉब्लम, राइट? 20,000 आए तो उस 20,000 के लिए जब तक आप बहुत प्यार से थैंक यू नहीं फील करते, तब तक आगे आने का रास्ता ही नहीं खुलेगा। और जो रास्ते बने हुए हैं, पाइपलाइन जहां से पैसा आपकी जिंदगी में आने भी वाला है, वहां पे भी ब्लॉकेजेस आने लग जाएंगे, क्योंकि कंप्लेन आई है पैसे के लिए। ठीक है, सो ये चीज हमको समझनी जरूरी होती है। जैसे जब मेरा टैक्स रिफंड आने वाला था, जो आईटीआर हम फाइल करते हैं, तो उसके पहले मैंने 555 नहीं किया था। जब मेरा आईटीआर आ गया था, जब क्रेडिट हो गया था, तब मैंने किया था। और उसके बीच में मैं बस मेंटली अपने आप को बोल रही थी थैंक यू, मतलब मैंने वो कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस जो होती है 10 वाली, वो जरूर की थी। हर इंसान को जो इनकम टैक्स के ऑफिस में काम करता है, फ्रॉम द पियोन टिल द हेड ऑफ द दिस थिंग, उन सबको थैंक यू बोलना। इनकम टैक्स के पैसे से जो रोड्स बने हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, उन सब के लिए थैंक यू करना। हर एक स्टाफ वहां पे है, उनकी अच्छी हेल्थ की कामना करना। ये सब आई हैड डन माई कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड 2 or 3 times, 10 पॉइंट लिखना वहां के स्टाफ के लिए, अबाउट द गवर्नमेंट, अबाउट दिस। और उसके बाद जब फाइनली जब मेरा आईटीआर क्रेडिट हो गया, फिर मैंने फिर मैंने 555 प्रैक्टिस करी थी रिसीव होने के बाद, जस्ट टू अप्रिशिएट। आई कुड हैव सेड दैट ये तो इतना, मतलब 80,000 कम आया है और समथिंग लाइक दैट, बट उस तरफ दिमाग ही नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो तो सारी एक्सपेक्टेशंस है जो हमने, बट कर्मा ऑलवेज कम्स इन दिस वे ओनली, नो? सो इसीलिए जो है, जब तक उसके लिए हम बहुत दिल से बहुत सारा ग्रैटिट्यूड नहीं करते, तब तक हमारे पास फ्लो ऑफ abundance नहीं आता है। So be very happy where you are right now and give a lot of gratitude to all the amounts that you have, like मेरे जैसे मेजरली 3 अकाउंट है, तो मैं तीनों अकाउंट में आजकल तो ऐप से फटाफट पता लग जाता है कितना अमाउंट है, तो मैं उस अमाउंट को लिख के थैंक यू बोलती हूँ। और उस अमाउंट को कभी कभी लिख नहीं पाती तो देख के बोलती हूँ। सपोज किसी अकाउंट में है 12,300 समथिंग रुपए, है ना? तो उस अमाउंट को देख के आई से थैंक यू सो मच फॉर द abundance ऑफ मनी यूनिवर्स यू हैव गिवन टू मी, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच दैट आई हैव फ्रीडम टू चूज। फिर सेकेंड अकाउंट में हो सकता है उस अकाउंट में 10,000 ही हो, है ना? तो आपको लगेगा कि अरे इसमें तो कम हो रहे हैं, नहीं सोचना है। सो इंस्टेड उस 10,000 रुपए के लिए आप बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पोर करो, सैचुरेट करो, दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट आई हैव 10,000 रुपीज इन सो एंड सो अकाउंट। फिर आप तीसरे अकाउंट में आपने देखा जितना भी अमाउंट है, उसमें इतना सारा ग्रैटिट्यूड उसको देख के ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ भरो, बिकॉज आजकल तो दिख जाता है जिनके पास एप्स हैं। सो उसमें देख
देके, and then when you give gratitude, you will see that money will keep multiplying. Okay, so all these things are what Dr. Joseph Murphy is trying to tell us, that हमारा lack का जो वो होता है, not appreciating the money and comparing yourself to the other person, कि उसकी इतनी सैलरी और मेरी इतनी सैलरी है, उसको उसको इसी प्रोफाइल के इतने मिलते हैं और मुझे इतने ही मिल रहे हैं। ऐसा बहुत ह्यूमन है ऐसा सोचना, लेकिन जब आप हमारे वर्ल्ड में होते हैं तो आपको ऐसा नहीं सोचना होता है। यू हैव टू बिकम अ मैग्नेट टू मनी। So I'm just giving you these little hacks that I have practiced all my life, which is constantly increasing the flow of income from multiple sources, and ideas coming in and giving a good output also, and supporting others who need help, and not taking any service free of cost from anyone or anybody, anything at all. This is how we will grow when it comes to our financial success. Okay, so that is all we have, and thank you so much for listening so nicely, intently.